Hello, Sat Shri Akal, Namaste. Welcome back to my channel. My name is Miss Amadip Kaur. Today, let's do subject EVS. We are going to read chapter 22, Natural Resources. Natural resources means Prakritik Some. Let's read. Morning prayer was going on in the school as usual. After singing national anthem and reading thought of the day, one of the students read news headlines. A news headline disturbed Gurleen. It read as one wild leopard entered a zoo and attacked two deer. People were very scared. They started keeping vigil. After attending morning assembly as a student reached their classes, Gurleen started talking to her friends about this news. Not only Gurleen but other students were also curious to know about this. मॉर्निंग प्रेयर हो रही थी, उसके बाद नेशनल एंथम बोला गया, उसके बाद थॉट ऑफ द डे। लास्ट में जब न्यूज़ हेडलाइंस बोली गई तो लास्ट में एक ऐसी थी जिससे गुरलीन डिस्टर्ब हो गई। वो न्यूज़ थी कि एक लेपर्ड जू में एंटर कर गया, उसने 2 डियर्स को मार डाला और लोग बहुत डर रहे थे। मॉर्निंग असेंबली के बाद सारे स्टूडेंट क्लासेस में गए तो गुरलीन इसके बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और बाकी के स्टूडेंट्स भी इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। As the teacher entered, heard the murmuring of students. She asked about the topic of discussion. Gurleen at once asked, "Madam, why did this wild leopard enter the zoo and kill the deer? Did it not get anything to eat in jungle?" Teacher, yes, Gurleen, you are absolutely right. This is actually a very serious issue. We will definitely discuss it today. बच्चों की आवाज़ सुन के टीचर ने एंटर किया क्लास में और फिर पूछा कि क्या डिस्कशन हो रही है। तो गुरलीन ने बताया कि जो न्यूज़ हेडलाइन के बारे में उसने सुना था कि वाइल्ड लेपर्ड ने जू में अटैक किया और 2 डियर को मार डाला। ये सुनकर गुरलीन ने कहा, क्या उनके खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं है? तो टीचर ने बताया, बिल्कुल सही रीज़न बताया आपने, यही रीज़न है जिसकी वजह से जो लेपर्ड है, जो वाइल्ड एनिमल है, वो रेजिडेंशियल एरिया में प्रवेश करते हैं। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज फॉरेस्ट, right? Now next, dear student, first of all, man is cutting down forests to expand villages and towns, thus attacking the animals and destroying their habitat. Due to this, it is difficult for wild animal to live and find their food. If the natural habitat of animal will be destroyed like this, where will they go? अगर मनुष्य ऐसे ही फॉरेस्ट को कट करेगा, उनको काट डालेगा, सारे ट्रीज काट डालेगा, एनिमल्स को मारेगा, उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेगा, रहने के स्थानों को डिस्ट्रॉय करेगा, तो क्या होगा? जो वाइल्ड एनिमल होंगे उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, खाने के लिए फूड नहीं होगा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया में चले जाते हैं। यही रीजन है कि उन्होंने एंटर किया। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू लेपर्ड्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स कम टुवर्ड द रेजिडेंशियल एरिया? सो आंसर इज, सो हियर man is cutting down forest and destroying their habitat. Due to this, leopard and other wild animals come towards the residential areas to find food. Question 2. Has any such incident happened in your area that a wild animal entered a residential area and caused harm? If not, you might have heard any incident on television or read a newspaper. Write it down. So answer is, a sambar came in our area and destroyed the crops. People called the police and forest department. They controlled it and catch. Next, let's read. Gurleen, Madam, man does not need forest. गुल्ली ने पूछा, क्या मनुष्य को फॉरेस्ट की जरूरत नहीं है? टीचर, इट इज नॉट सो. फॉरेस्ट आर वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मैन. इन द अर्लियर टाइम्स मैन यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट लाइक अदर एनिमल्स. ही डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट फॉर ऑल हिज नीड्स. Man has progressed, but even now he is dependent on natural resources such as forest, air, water, soil, coal, petroleum, natural gas for his survival. Out of all these natural resources, forests are of prime importance as forests are the main source of all other resources. Air, water, soil are renewable resources which are renewed and replaced naturally by the forest. So you can see, अभी टीचर ने बताया कि फॉरेस्ट इंसान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेसेसिटी है, ज़रूरत है। मनुष्य इसी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो कितना भी प्रोग्रेस्ड हो चुका है फिर भी उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि फॉरेस्ट, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब इसमें से कुछ होते हैं रिन्यूएबल जो हमें वापस से मिल सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल, और कुछ ऐसे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, तो उनका यूज हम लिमिटेड क्वांटिटी में ही कर सकते हैं। आप पिक्चर्स देख सकते हो, दिस इज कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट, बट कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नो रिन्यूएबल सोर्सेज एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश दिस रिसोर्सेज। अब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऐसे हैं जो दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है,
Question 3. What are natural resources? List different type of natural resources. So answer is the resources available in nature are called natural resources. For example, coal, petroleum, forest, water and air, etc. Fourth, given below is one example each of renewable and non-renewable resources. Complete the list. So here, air, water, soil, and in second column, petroleum, coal. Forests are important natural resources. During the process of photosynthesis, trees take the carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen. In this way, the balance of gases in the atmosphere is maintained. Due to the process of transpiration, trees lose water in the form of water vapor, which keeps the atmospheric temperature under control, and these water vapors help in cloud formation, which in turn causes rain. Let us understand this natural process through an activity. फॉरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. जब ट्रीज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ऐसे ही गैसेस का बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में, राइट. और जब वो ट्रांसपीरेशन करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर जो उनके अंदर होता है उसको रिलीज करते हैं वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, तो ऐसे क्या टेम्परेचर कंट्रोल रहता है एटमॉस्फेयर का और ऐसे ही क्लाउड्स बन जाते हैं उन्हीं ही वेपर्स के और फिर रेन होती है. एक्टिविटी है एक हमारे पास. Activity: select a branch of tree without breaking it from the tree. Cover this branch with dry polythene bag and tie its tree and tightly absorb it on second day. आपको बताया कि ट्री की कोई भी ब्रांच तोड़े बिना उसके ऊपर आप एक पॉलीथीन बांध दो. उसके बाद पॉलीथीन बैग को नेक्स्ट डे आप चेक करोगे तो आप क्या चेक करोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू सी सम वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द पॉलीथीन बैग? वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? फाइंड आउट एंड नोट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. अब आप देखोगे उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, पानी की बूंदें, तो आप इसका आंसर लिखोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा. चिल्ड्रन, दिस वाटर वेपर गो in the atmosphere and keep the temperature under control and help cloud formation which results in rainfall on the earth. ऐसे जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्लाउड्स बन जाते हैं और बारिश होती है. अभी हमारे पास नेक्स्ट है. इन द फॉरेस्ट द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा फॉल डाउन ऑन ग्राउंड. दे डिके एंड मिक्स इन द सॉइल टू मेक द सॉइल फर्टाइल. जो फॉरेस्ट में ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं वो जमीन पे गिरते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं जिससे कि मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है. नेक्स्ट है मेडिसिन, हर्ब्स, फ्रूट्स, रबर, गम, कलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से क्या कुछ ऑब्टेन होता है? फ्रूट्स, रबर, गम एंड कलर्स. नेक्स्ट है वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेज टू मेक फर्नीचर एंड फॉर फ्यूल. वुड हमें ऑब्टेन होती है जिससे हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर्स, घर बनाते हैं और फ्यूल के लिए उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस. What products are obtained from the forest? So answer is fruits, wood, rubber, medicines, herbs, ointments and vegetables, etc. Question 6. How do forests make the soil fertile? So answer is in forest the fruits, leaves and flowers etc. fall on the ground and mix into soil. This make the soil fertile. Next, Gurleen, if forests are so beneficial then why man is making such a big mistake to cutting the forest on large scale? गुरलीन ने पूछा अगर फॉरेस्ट इतने ही बेनिफिशियल हैं फिर इंसान उसको क्यों काटता है, क्यों ऐसी मिस्टेक करता है. टीचर ने बताया टू मीट द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मोर एग्रीकल्चर लैंड वाज नीडेड, इंडस्ट्रीज वर सेट अप, न्यू सिटीज वर डेवलप्ड, roads and railway lines were laid and for many more reasons forests were cut down, so wild animals are coming toward the residential area in search of food. Due to cutting of forest other natural resources are also affected. Now a lot of steps are being taken to save forest. For example, we are given the examples to save. अभी टीचर ने बताया कि जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से इंसानों को ज़्यादा रहने की जगह चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहता है जिससे वह एग्रीकल्चर कर सके. इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहा है, सिटीज सेटअप कर रहा है, रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइंस बना रहा है. इसकी वजह से एनिमल्स के हैबिटेट, उनकी रहने की जगह खराब हो रही है, विनाश हो रहा है उनकी रहने की जगहों का, जिसके लिए एनिमल्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में एंटर कर जाते हैं. तो यही रीज़न है. फॉरेस्ट काटने के बहुत सारे नुकसान हैं हमें, राइट. तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं वो हमें बताया गया है. अभी देखो, कटिंग ऑफ रिमेनिंग फॉरेस्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग हम ट्रीज को नहीं काट सकते हैं. फॉरेस्ट आर बीइंग कंजर्व, फॉरेस्ट को बचाया जा रहा है. पब्लिक एंड स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड टू प्लांट मोर ट्रीज. पब्लिक और स्टूडेंट को बताया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने के लिए. डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स इज बीइंग प्रमोटेड इन एंड अराउंड सिटीज़. अलग अलग जगह पे ग्रीन बेल्ट्स का यूज़ करने के लिए बताया गया है. Planting of trees on the boundary of field is encouraged.
प्लांटिंग ऑफ ट्रीज को भी इनकरेज किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाए जाएं। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई टू प्लांट मोर ट्रीज। वन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक जुलाई के में ज्यादा प्लांट उगाने के लिए। नेक्स्ट Question 7. Why are forests being cut? So answer is man is cutting trees to expand residential area due to increasing population. Many roads, railway lines, industries are set up in the place of forests. Question 8. What would you do to save forests? So answer first, we should use limited land to make houses. Second, we should grow more trees. Third, we should use iron for making houses in the place of wood. Next. Air is an invisible natural resource. It surrounds the earth and thus constitutes the atmosphere of the earth. First, all green plants take carbon dioxide from the air to prepare their food. Second, all living organisms use oxygen from the air for respiration. Oxygen is required for burning of the fuel. Air is filled in balloons and tires. Windmills used to generate electricity also run on air. Besides, we use air in our daily life. Example, to fly kites, to separate grains from husks, to run fans in summer. अब एयर के बारे में बताया गया, ये इनविजिबल है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, एयर को हम देख नहीं सकते, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, इसी ने धरती को कवर किया हुआ है, मीन्स घेर रखा है, राइट। अब इसका क्या क्या यूज है, हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, सांस लेते हैं, मीन्स उसको अंदर लेके जाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। सारे ही ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन जरूरी है फ्यूल के बर्निंग के लिए। एयर बैलून्स और टायर्स में भी फिल की जाती है। विंड मिल्स भी एयर की वजह से चलती हैं, एयर को यूज करके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम एयर का यूज करते हैं काइट्स को उड़ाने के लिए और हस्क और ग्रेन्स को अलग करने के लिए और समर में फैंस चलाने के लिए। एयर के बिना ये चल नहीं सकते हैं। लेट्स डू एक्टिविटी, यू कैन सी इन द पिक्चर। हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर पेपर लेना है, इसके 4 कॉर्नर में से इनको काट लेना है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद इसको फोल्ड करना है जैसे कि पिक्चर में बताया गया है। तो ऐसे ही हमें एक विंड मिल बनानी है और इसको हम कैसे उड़ाएंगे, हमें इसको हाथ में पकड़ के भागना होगा। जैसे ही स्पीड से हम भागेंगे तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इसी से हमें प्रूव होता है कि विंड मिल भी ऐसे ही काम करती है हवा की वजह से। स्टेप्स टू मेक पेपर फैन बाय पेपर फोल्डिंग, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, ये है विंड मिल्स कैसे लगी होती हैं ये, राइट। क्वेश्चन 9, विच गैस डू प्लांट्स यूज फ्रॉम द एटमोस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस? सो आंसर इज प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। Next question 10, which gas is used by living beings for respiration? So answer is living beings use oxygen for respiration. Next question, which gas is released out by living beings during respiration? So answer is living beings release carbon dioxide during respiration. Next, now let's read. Children, the air is also being polluted by a number of activities. कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिससे एयर पोल्यूट होती है? So reasons are burning of crop residue and dry leaves, burning the garbage, dumping the garbage in open due to burning of the forest, cutting down of forest, throwing dead animal in the open instead of burying them, due to emission of smoke from household fuel, automobile, industries and factories, due to smoke of cigarette, due to smoke produced by bursting crackers, due to cough and sneezing. क्रॉप का रेजिड्यू और ड्राई लीव्स को हम बर्न कर देते हैं, गार्बेज को बर्न करते हैं, जो ओपन में उनको फैला देते हैं, दबा देते हैं। और क्या हम करते हैं, फॉरेस्ट को जलाना, फॉरेस्ट को काट देना, डेड एनिमल को बाहर फेंक देना, उनको दफनाए बिना। स्मोक जो हमारे घरों से निकलती है, ऑटोमोबाइल्स में से निकलती है, फैक्ट्रीज में से निकलती है, सिगरेट्स में से जो स्मोक निकलती है, या फिर क्रैकर्स को जब हम चलाते हैं, बर्स्ट करते हैं तो उससे भी स्मोक निकलती है, या फिर हम खांसते हैं या छींकते हैं उससे भी एयर पोल्यूट होती है। नेक्स्ट, हियर एयर पोल्यूशन देख सकते हो कैसे एयर पोल्यूट हो रही है। Listed below are some activities. Which of these activities cause pollution and which do not? तो हमें yes और no में इसका आंसर देना है। Burning of wood, yes. Filling the tires, no. Breathing, no. Bursting crackers, yes. Working of fan, no. Storm, no. Burning the wastage, yes. Burning crop residue, yes. Next, we have water. Water is a very important natural resource. It is present on earth in the form of oceans, rivers, streams and lakes. It exists underground also. It is on the poles in the form of snow, but still the percentage of usable water is very less. Water is used by all the living organisms in their daily life. Liquid waste of household and factory is discharged into lakes. आपने देखा कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है। धरती के ऊपर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ओशन, रिवर, स्ट्रीम और लेक्स में हमें मिलता है। ये धरती के अंदर भी है, मींस अंडरग्राउंड वाटर।
अब हमें पता है ये स्नो की फॉर्म में भी हमें मिलता है, पर इसकी परसेंटेज यूजेबल वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं उसकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हाउस होल्ड और फैक्ट्री का जो भी कूड़ा करकट होता है, जो लिक्विड वेस्ट होता है, वो इनमें मिक्स हो जाता है, इन्हीं में छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे पानी गंदा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे होता है। And rivers, it pollutes fresh water. Drinking contaminated water causes dangerous diseases like cholera and jaundice in human animals and fish are also dying. अभी इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि कॉलरा, जॉन्डिस ह्यूमंस में, और इनसे फिश भी मर रही हैं। वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका हमें बताया गया पॉइंट्स में। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। वाटर इज यूज्ड टू रन स्टीम इंजन्स ऑफ ट्रेन, फॉर शिपिंग, फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉर फिश फार्मिंग, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूजर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर बहुत ही ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, पीने के लिए। इसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, फील्ड्स में फसल उगाने के लिए। इसको स्टीम इंजन्स में यूज़ किया जाता है जिससे ट्रेन चलती है, शिपिंग के लिए, शिप चलाने के लिए। इंडस्ट्रियल यूज़ होता है फिश फार्मिंग, फिशेस को फार्मिंग करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज हैं जिससे बिजली पैदा होती है, वो भी इसी से होती है, पानी से होती है। So your question is, in which day-to-day life activity do you use water? So answer is, we use water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, cleaning, irrigation, and to generate electricity. Next question, what steps would you take to curb the wastage and pollution of water during our daily activities? So answer is, first, turn off the tap properly. Second, reusing water for irrigation. Third, use limited water while bathing. Next, let's read soil. Soil means मिट्टी, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। लाइक फॉरेस्ट, वाटर एंड एयर, सॉइल इज अनदर important natural resource. We use soil for building houses, growing plants, making pots, and in number of other works. But soil is also being polluted with a number of activities, जैसे कि using fertilizers more than exact requirement, throwing polythene and plastic wastes in soil, using insecticides more than requirement, using pesticides more than exact requirement, erosion of soil due to windstorms, washing of fertile topsoil by floods, uncontrolled digging of mountains. सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इससे हम प्लांट्स उगाते हैं, इससे हम घर बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं, पर ये भी पोल्यूट हो रही है। इसके रीजंस है कि फर्टिलाइजर जो हम खेतों में डालते हैं बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जिससे कि मिट्टी पोल्यूट होती है। पॉलीथीन बैग्स और वेस्ट हम ऐसी मिट्टी में फेंक देते हैं। इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं वो भी पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। मिट्टी जैसे कि स्टॉर्म्स वगैरह में उड़ जाती है, जो अच्छी मिट्टी होती है वो उड़ जाती है जिसमें अच्छी फसलें उगती हैं। और कुछ फ्लड्स की वजह से मिट्टी की वेस्टेज होती है, और कभी कभी हम माउंटेन को डिगिंग करते हैं, उनको खोदते हैं, उनसे भी मिट्टी वेस्ट होती है। Here you can see the picture, soil pollution कैसे हो रखा है। Next we have a questions, in which day-to-day life activity do you use soil? So answer is, we use soil to make pots, bricks, houses and toys. Next, give suggestion to reduce soil pollution. So answer is, first, limited use of fertilizers. Second, avoid use of polythene bags. Third, do not throw garbage in open. नेक्स्ट, नो रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं, कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल नोन रेन्यूएबल रिसोर्सेज एट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम। इनको बनाने के लिए बहुत सारे साल लगेंगे, मिलियन साल। In nature, they are present in limited amount. They are being used at a faster rate and are thus being depleted. This is why they are getting costlier day by day. इनको प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इनकी कॉस्ट हाई होते हैं। जैसे कि कोल इज यूज्ड इन थर्मल प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इन स्टीम इंजन्स टू मेक स्टीम एंड इन किल्न्स टू जनरेट हीट। कोल का यूज होता है थर्मल प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, स्टीम इंजन चलते हैं इससे, और भी बहुत सारे इसके यूज हैं। नेक्स्ट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. Petrol and diesel are used in transportation. Petroleum gas and kerosene are used for cooking, to keep light and to heat the water. Besides the above mentioned uses, these resources have many more uses. इनके बहुत सारे uses हैं, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोलियम हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, लाइट के लिए यूज़ करते हैं, और पेट्रोल का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि व्हीकल्स में, राइट। एक्टिविटी को हम स्किप करेंगे। Here also list of some non-renewable sources given below. Write the uses in front of their names. Coal,
cooking food, heating water, petrol, running yacht vehicles and aeroplanes, diesel for running buses and cars, kerosene oil in stove for cooking food, cooking gas for cooking food. Next, now Mr. S.C. Mehta is a prominent lawyer and an environment lover in India. He has filed a number of cases in Supreme Court to save the environment and Taj Mahal in Agra from turning back due to pollution. Supreme Court has issued orders to Government of India to reduce pollution. Notices were issued to factories located around the Taj Mahal either to reduce pollution or to close the factories. As a result, Government of India has taken several steps to save the environment. मिस्टर S.C. मेहता एक प्रोमिनेंट लॉयर है, एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं. उन्होंने बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में दिए थे जिससे कि ताजमहल को ब्लैक होने से बचाया जा सके, जो कि पोल्यूशन की वजह से ब्लैक हो रहा था. तो बहुत सारे स्टेप लिए गए. जो वहाँ पे आसपास की इंडस्ट्री थी या फिर फैक्ट्रीज थी उनको बंद करने के लिए बोला गया या फिर उनको पोल्यूशन कम करने के लिए बोला गया. बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं. जैसे कि चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो all other living organisms have equal right to use them. They also have equal right to live on the earth like human beings. We should use natural resources judiciously so that coming generation and all other living beings may also live peacefully on earth. हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए, हमारे लिए ही नहीं, इसके अलावा एनिमल्स और सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इनका सही यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है things to remember. We should use limited land to build houses due to the increasing population. Forests are cut to build flats and houses. Earth is the home of different living beings, animals, birds and insects. Man is continuously misusing the natural resources. We should plant more and more trees to save the forest. Next, let's do questions. How do you use air in your day-to-day life? So answer is for respiration, to fill in the balloons and to fly kites. Next question, which gas is used and which gas is released in atmosphere when fuel is burnt in scooters, cars, trucks, etc.? So answer is oxygen is used during burning and carbon dioxide is released after burning the fuel. 20th question, list the causes of air pollution. So answer is first, burning garbage. Second, smoking cigarettes. Third, bursting crackers. Next question, what steps would you take to save the air from pollution? So answer is by not burning garbage, by reducing use of vehicles, by not using firecrackers. Next question, how is soil wasted by natural process? So answer is due to floods and storms. Next question, give one use of air. So answer is windmills are used to generate electric power using air. So we have done this lesson. Thank you so much for watching.